So today we are taking up Health Suraksha Insurance. The Health Suraksha Insurance. This is a new product launched recently, and this is the first product in the indemnity-based category of health insurance. Listen attentively and properly. We have got number of health insurance products earlier, but this is our first indemnity-based product. All our previous products were benefit-based products. So there is a basic difference between these two categories. In benefit-based products, the claimant gets the complete benefit limit selected by him or her in the claim amount, and that is lump sum. But in indemnity-based products, the claim is on the basis of reimbursement. Reimbursement on the basis of bills submitted and bills payable. So a lot of things are deducted out of that, which are not payable, which are not within the policy purview. So the actual amount reimbursed is far, far less than the actual amount claimed. This is not the scenario in the benefit-based products. In benefit-based products, suppose if you have selected the sum insured of 5 lakh rupees, you have spent only 3 lakh rupees on your disease. Insurance company will pay complete 5 lakh rupees without any deduction and lump sum. But here, suppose you have incurred 3 lakh rupees, your policy is 5 lakh rupees. Out of 3 lakh rupees, how much amount is payable, that depends upon the processing of the claim. Because a lot of deductions are there. So this is the first product of the indemnity-based category. Now see what is the special feature of this product. It helps to cover your medical treatment cost. It protects from your financial losses which may occur due to illness or accident. The special features of the product are: in this treatment, cashless facility is available. No medical test is required up to 50 years. Tax saving is there as usual on the health insurance policies and life insurance policies. Financial stability is there, better medical care there, support in medical emergency. So this is a health insurance policy which will pay you indemnity-based claim. Now these are the special things which are covered under this policy. Inpatient hospitalization, pre-hospitalization expenses are payable, post-hospitalization expenses are payable. Daycare treatment and modern treatments are payable, Ayush treatment is payable. Even cataract treatment and ambulance expenses are payable. Because they are all parts of the policy coverage. Subject to deductions, but they are all payable. Now what does hospitalization mean? Hospitalization means medical expenses incurred for hospitalization shall be indemnified up to the sum insured plus cumulative bonus. In case the insured or any of his family member is hospitalized due to sickness or illness, the charges reimbursable or payable under the policy will be with these limits. Room rent, boarding, nursing expenses only up to 2% of the sum insured. That is maximum 5,000 rupees per day. If the insured has taken the room of 8,000 rupees per day, the amount will be deducted. And for the number of days he was hospitalized, 5,000 rupees per day will be paid. ICU charges
or intensive cardiac care unit charges are limited up to 5% of the sum insured, subject to maximum 10,000 rupees per day. These two limitations are there in case of hospitalization. Rest of the expenses are paid on the actual basis, like surgeon's fee, anesthetist fee, medical practitioner fee, or the tests. They will be paid on actual basis. Now, as far as diseases are concerned, cataract treatment is covered, but the payment limit is 25% of the sum insured or rupees 40,000, whichever is lower, per eye under one policy. For cataract operation in one eye, maximum pay amount payable is 25% of the sum insured or 40,000, whichever is lower, in one policy year. Dental treatment due to injury, up to 40 sum insured is payable. Plastic surgery treatment due to injury is payable, up to sum insured. All daycare treatment, road ambulance, modern treatment are also payable. For road ambulance, 2,000 rupees per hospitalization, and for modern treatment up to 50% of policy sum insured. What is modern treatment? That I will explain just now. So hospitalization means minimum 24 consecutive years as inpatient, but not applicable for daycare treatment. Inpatient means full 24 hours in hospital, but not requiring daycare treatment. Daycare treatment means like cataract treatment or dental treatment, they don't need 24 hours. Cataract operation is done within half an hour or an hour only. Dental treatment is done maximum within an hour only. So for such thing, 24 hours hospitalization is not required. Ayush treatment. This is important to understand what is the word Ayush. So medical expenses incurred for hospitalization under Ayush hospital are payable, indemnified, up to sum insured, plus cumulative bonus. But what is this Ayush? Ayush stands for A means Ayurveda, Y means Yoga and Naturopathy, U means Unani, S means Siddha, or H means Homeopathy. These all are pathies of the medical treatment. Normally people take allopathic treatment, but these rest of the allopathic treatments are also permissible. Ayurveda, Unani, Siddha, Homeopathy, Naturopathy. Only condition is hospitalization should be minimum 24 consecutive years. Consecutive hours means lagatar, continuous. As inpatient means you were in the hospital, admitted in the hospital that time. Pre-hospitalization expenses means the insured is suffering from some sickness, but he is not yet hospitalized. He is taking the treatment, he is undergoing the tests, incurring the expenses or cost on the treatment, but not yet hospitalized. These all expenses are also payable for 30 days. Day count is 30 days. Pre-hospitalization expenses can include lab test, X-ray, CT scan, ECG, MRI, doctor consultation, medicine, etc. Someone want to ask anything or to tell anything? Okay, I'll take care of it. So pre-hospitalization means हॉस्पिटलाइजेशन के 30 दिन पहले तक जो भी खर्च हुए हैं वो एक्सपेंसेस पेबल होंगे, चाहे वो लैब टेस्ट पर हुए हों, एक्सरे पर हुए हों, सीटी स्कैन पर हुए हों, ईसीजी पर हुए हैं, एमआरआई पर हुए हों,
Pre-hospitalization expenses for 30 days are payable. Then post-hospitalization, भर्ती होने के बाद के 60 दिन के खर्चे पेबल हैं. Any medical expenses after discharge from hospital is known as post-hospitalization. For 60 days from the date of discharge, these expenses could be consultation fee, diagnostic charges, medicines, drugs, physiotherapy, etc. अब फिर से समझ लीजिए, मुझे आज बीमारी हुई, मैंने पॉलिसी ले रखी है, ये श्री हेल्थ सुरक्षा. मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा 10 दिन तक ये दवाई लेनी. मैं 10 दिन तक दवाई ले रहा हूँ, टेस्ट करा रहा हूँ, मेरा टेस्ट चल रहा है. 10-15 दिन तक मैंने दवाई ली, 15वें दिन डॉक्टर कहता आपको भर्ती होना पड़ेगा. ओके, मैं भर्ती हुई. 5 दिन भर्ती रहा, उसके बाद मेरे को डिस्चार्ज कर दिया और उनका ये 2 महीने तक ये ट्रीटमेंट लेगी. Now by cost incurred on 15 days pre-hospitalization treatment covered, hospitalization charges covered, post-hospitalization 60 days treatment covered. So this is called pre-hospitalization, post-hospitalization and hospitalization. Then cumulative bonus. Cumulative bonus in health insurance policies is given not as discounted premium. कैसे देते हैं क्यूमुलेटिव बोनस को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में? 5% सम इंश्योर्ड पर ईयर बढ़ जाएगा. क्लेम 3 ईयर पर, जिसमें क्लेम है उसमें माइनस हो जाएगा. तो क्यूमुलेटिव बोनस मीन्स रिवार्ड ऑफर्ड ऑन रिन्यूअल बाय इंश्योरर टू पॉलिसी होल्डर हु डू नॉट मेक एनी क्लेम ड्यूरिंग ए पॉलिसी ईयर. मैंने पूरे साल में अपनी पॉलिसी पे कोई क्लेम नहीं लिया, अगले साल मैं रिन्यू करा रहा हूँ तो मेरा प्रीमियम वो ही रहेगा. सम इंश्योर्ड 5% से फ्री में बढ़ जाएगा, उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लगेगा, उसका प्रीमियम नहीं लगेगा. और अगर मेरा ये 50% तक बढ़ सकता है, जिस साल क्लेम हो गया 5% से डाउन आ जाएगा. तो क्यूमुलेटिव बोनस शैल बी अवेलेबल ओनली इफ द पॉलिसी इज रिन्यूड. Premium can be paid within 30 days grace period. Cumulative bonus can go up to 50%, 5% per year. But this is not given as discounting premium. This is given as increase in the sum insured. Increase in the sum insured. ये मोटर पॉलिसी की तरह एनसीबी ओडी प्रीमियम में से डिस्काउंट नहीं दिया जाता. यहाँ क्या किया जाता है, सम इंश्योर्ड को 5% से बढ़ा दिया जाता है, हर साल 5%. एग्जाम्पल से समझिए, आप टेकन ए पॉलिसी फॉर 5 लाख रुपीज. इन फर्स्ट ईयर देयर वाज नो क्लेम. सो व्हेन आई रिन्यूड दिस पॉलिसी इन द नेक्स्ट ईयर, my sum insured is increased by 5%, that is 25,000 rupees. So my total sum insured is 5,25,000. Next year again I took no claim. Next year again 5% sum insured increase. So the total increase is 25 plus 25, 5,55,000. So my sum insured is my maximum benefit. Third year again 25% increase, fourth year again 25% increase, and fifth year I took the claim. So when my 20% increase was there on the sum insured, and 5 lakh sum insured became 6 lakh, out of that 5% is deducted because I have taken the claim. So it remains 5,75,000. 4 साल तक मैंने लगातार 5% कमाया और 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख मेरा सम इंश्योर्ड बढ़ता चला गया. 5 का 6 लाख हो गया. लेकिन चौथे साल में जब क्लेम ले लिया तो 5% माइनस हो गया, तो 5,75,000 हो गया वापस. तो ये माइनस केवल अर्न में से होगा. अगर फर्स्ट ईयर में ही कोई क्लेम है तो अर्न है ही नहीं, इसलिए माइनस नहीं है, लेकिन बोनस मिलेगा भी नहीं.
पॉलिसी कैसे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देखिए. दिस पॉलिसी कैन बी गिवन टू द पर्सन ऑफ 18 years of age. 18 ईयर से कम वाले को पॉलिसी नहीं मिलेगी. हु इज दिस? मिस्टर शंकर आचार्य. So minimum age required is 18. Proposal says cannot be below than 18 years. लेकिन पॉलिसी पर कौन कवर हो सकता है? सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, नेचुरली और लीगली अडॉप्टेड, 3 months to 25 years. If the child is more than 18 years and financially independent, means he is doing his own job, he is earning or he is running a business, in that case he has to take a separate policy. Parents and parents-in-laws are also covered. बोलिए तो. आ रहे हैं अभी उस पॉइंट पर आ रहे हैं. तो मिनिमम एज 18 years, but what is the family? Policy can be taken by self, spouse, dependent children, parents and parents-in-laws. And then two type of policies are there, individual or family. Individual means separate sum insured for each member. मैंने अलग ली, वाइफ ने भी अलग ली, बेटे ने भी अलग ली. Individual policy, individual sum insured. Family floater means in one policy the entire family is covered. Single sum insured for all members. If one member is taking the claim, the sum insured will be reduced by that claim amount. That is the family floater. So sum insured can be 5 lakh, 7.5 lakhs or 10 lakhs. Entry age minimum 18 years, maximum 65 years. I repeat, gentlemen, your question is answered. Minimum is 18 years, maximum is 65 years. Policy period is 1 year. Sum insured 5 lakh, 7.5 lakh and 10 lakh. Now there are certain things to know which are important. What is hospital? Because the insured will take the cashless treatment. For that purpose, the hospital should be network hospital. And minimum requirement of that network hospital is at least 10 inpatient beds in those towns or cities where the population is less than 10 lakh. जिस शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, हॉस्पिटल में 10 बेड होने चाहिए. जिसकी 10 लाख से ऊपर है, हॉस्पिटल में 15 बेड होने चाहिए. उसी हॉस्पिटल को नेटवर्क हॉस्पिटल में शामिल किया जाएगा. तो ये आपको नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट मिल जाएगी. आयुष हॉस्पिटल कौन से होंगे? आयुष हॉस्पिटल इंक्लूड्स आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी. ऐसे हॉस्पिटल के लिए कंडीशन क्या है? हैविंग एटलीस्ट 5 inpatient beds. 5 inpatient beds. City population is no criteria. Then free look period. Free look period is of 30 days. But what is this free look period? It's the period for insured to review the terms and conditions and get the premium back. Less administration fee if not satisfied with policy. अगर मैंने एक पॉलिसी आपसे 5 लाख की ली, पॉलिसी लेने के बाद मैंने उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी, मुझे पॉलिसी पसंद नहीं आई, मैं आपको वापस कर सकता हूँ 30 दिन के अंदर. आप केवल एडमिनिस्ट्रेशन फी काटोगे उसमें से और बाकी मेरा पूरा प्रीमियम रिफंड करेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन फी डिफाइंड है, वो कंपनी डिफाइंड कर देगी. लेकिन मुझे राइट है विद इन 30 डेज अपनी पॉलिसी कैंसिल कराने का पूरे रिफंड प्रीमियम पर. सेकेंड इज ग्रेस पीरियड.
ग्रेस पीरियड इज अगेन 30 days। ग्रेस पीरियड के मायने क्या? अगर मेरी पॉलिसी एक्सपायर हो गई तो मेरे बेनिफिट्स कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्यूमुलेटिव बोनस नहीं मिलेगा अगर मैंने टाइमली रिन्यू कराई तो भूल गया मैं 2 महीने के लिए, जबकि मैंने क्लेम नहीं लिया था तो मुझे क्यूमुलेटिव बोनस मिलना चाहिए था। लेकिन अगर मैंने उसको 30 days के अंदर रिन्यू करा लिया था, आई विल गेट इट। तो ग्रेस पीरियड मीन्स पीरियड विच विल नॉट फ्रीज योर एनी बेनिफिट, also will be treated as continued. That's part of the break of 25-28 days, but not more than 30 days. Initial waiting period, पहली कंडीशन है पॉलिसी की, if there is any claim within 30 days, that will not be paid due to sickness or illness. 30 दिन के अंदर कोई बीमारी का क्लेम है तो नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट का क्लेम है तो मिल जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट के लिए कभी कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, सिकनेस और इलनेस के लिए होता है। दिस वेटिंग पीरियड इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द फर्स्ट पॉलिसी, नॉट ऑन रिन्यूअल। मैंने इस साल पॉलिसी ली, अगले साल मैं रिन्यू करा रहा हूँ, मेरा कोई वेटिंग पीरियड नहीं होगा। Initial waiting period is only for the first policy. Then pre-existing disease period 36 months. किसी भी जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी पॉलिसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर नहीं करती। मिनिमम 36 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पीरियड होता है, उसके बाद ही ये कवर की जाती है। फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक है या कोई लीवर पेशेंट है, तो जिसको ऑलरेडी डिजीज है उसको वो डिजीज कवर नहीं होगी, बाकी और सब कवर हो जाएगी, क्योंकि ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। तो ये 36 मंथ तक कवर नहीं होगी। कोपेमेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक फिक्स्ड परसेंटेज इंश्योर को खुद को बियर करना पड़ता है, अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। ये वही बात है कि अगर कंपल्सरी एक्सेस है, मान लिया 5% काट दिया, तो वो भी आपको भुगतना है। यहाँ क्योंकि आपको हॉस्पिटल को बिल का पेमेंट करना है, यहाँ 5% आपको भुगतना, तो आपको जेब से देना पड़ेगा। तो दिस इज 5%। Co-payment does not reduce the sum insured. Co-payment is applicable on claim amount. मेरी 5 लाख की पॉलिसी है, 1 लाख का क्लेम, 5,000 रुपये मुझे अपनी जेब से भरने पड़ेंगे, कैशलेस ट्रीटमेंट में बाकी मिल जाएगा, और जो चीज़ों के डिडक्शन होंगे वो भी मिलेंगे। लिस्ट ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, there are some diseases or surgical procedures which requires less than 24 hours due to advancement in technology. These are called modern treatments. अब पॉलिसी तो कहती है कि आपको 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन ये जो बीमारियां हैं इनमें 24 घंटे की जरूरत ही नहीं, तो आप 24 घंटे को अस्पताल आपको भर्ती रखेगा, लेकिन ये बीमारियां हुई तो इनका पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। क्या है कुछ मॉडर्न सिकनेसेस में? ओरल केमियोथेरेपी, रोबोटिक सर्जरी, ब्रोंटिकल थर्मोप्लास्टी, बैलून सोनोप्लास्टी, IONM, इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग, स्टेम सेल थेरेपी। तो इनकी ये 12 डिजीज की लिस्ट है। इनमें से अगर किसी इंश्योर को एक भी हो जाती है
तो उसको 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। वो हॉस्पिटल खुद ही कंफर्म कर देगा, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। देन वेटिंग पीरियड 24 मंथ। नॉर्मली 36 मंथ का वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज के लिए, लेकिन कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जिनके लिए वेटिंग पीरियड 24 मंथ है और वो 24 मंथ के लिए कवर्ड नहीं है। दे विल बी कवर्ड ओनली आफ्टर 24 मंथ। ये 20 स्पेसिफाइड डिजीजेज अपनी पॉलिसी में से 24 मंथ के लिए एक्सक्लूडेड हैं। कुछ इनमें बड़ी कॉमन है, टॉन्सिलाइटिस है, बेनाइन ईएनटी डिसऑर्डर है, हार्निया है, पाइल्स है, कैटरेक्ट एंड एज रिलेटेड आई एलिमेंट्स हैं। मतलब कैटरेक्ट कवर तो होगा लेकिन 24 महीने बाद होगा। गैस्ट्रिक अल्सर है। तो ये फॉर दिस डिजीजेज 2 years वेटिंग पीरियड इज देयर। देन हेल्थ पॉलिसी विल नॉट कवर मैनी थिंग्स, एक्सक्लूजन्स आर देयर। ये वो एक्सक्लूजन्स हैं जिनकी वजह से इंश्योर्ड के बिल में से कटौती हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। इन्वेस्टिगेशन एंड एवेल्यूएशन, रेस्ट क्योर, रिहेबिलिटेशन, ओबेसिटी या वेट कंट्रोल के लिए कुछ लिया गया है। चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, हजार्डस एडवर्स स्पोर्ट्स का नहीं मिलेगा, तो ब्रीच ऑफ लॉस का नहीं मिलेगा, रिफ्रैक्टिव एरर है उसका नहीं मिलेगा, मैटरनिटी एक्सपेंसेस का नहीं मिलेगा। तो ये पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स है। अब आते हैं क्लेम प्रोसेस पर। क्लेम प्रोसेस में सबसे पहली चीज तो ये है कि पॉलिसी कैशलेस ट्रीटमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में हर पर्सन ये चाहता है कि ही शुड नॉट पे एनीथिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट, लेट द इंश्योरेंस कंपनी पे डायरेक्ट टू दी TPA. TPA means third party administrator. This third party administrator is the bridge between the insurance company and the insured. So the TPA will handle all the claims. Cashless treatment can start within 24 hours from the date of emergency. Request has to be sent within 48 hours before admission. अगर आपको पता है कि बीमारी है, भर्ती होना पड़ेगा, तो आप पहले से इंटीमेशन दे दीजिए जिससे कैशलेस ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। और अगर कैशलेस फैसिलिटी है तो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पे कर देगी थ्रू TPA। नहीं है तो आपका बिल रिएम्बर्स कर दिया जाएगा। उस केस में भी आपने बिल TPA को सबमिट करना है। आफ्टर डिस्चार्ज विद इन 30 days फ्रॉम द हॉस्पिटल। उसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की दवाएं की बिल भी दे सकते हैं आप साथ। तो ये भी वही 24 आवर्स और 48 आवर्स की लिमिट यहाँ अप्लाई होती है। इंटीमेशन के लिए 24 आवर्स, एडमिशन से पहले अगर आपको मालूम है तो 48 आवर्स। और कैशलेस एंड रिएम्बर्समेंट बोथ सिस्टम्स आर एप्लीकेबल। कैशलेस में क्या करना पड़े? पहले तो नेटवर्क हॉस्पिटल में भर्ती होना जरूरी है, एंड देयर इज अ लिस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स। इन एवरी सिटी देयर आर द नेटवर्क हॉस्पिटल, मैनी, नॉट ओनली वन। दिस इज नॉट लाइक मोटर व्हीकल कैशलेस गैराज। Number of hospitals are listed. मेंबर ID, पॉलिसी नंबर, कार्ड दिखाना होगा। हॉस्पिटल एक प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भरवाएगा कैशलेस के लिए। उसको हॉस्पिटल प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म को TPA से साइन करा लेगा और कैशलेस स्टार्ट हो जाएगा।
तो टीपीए प्री ऑथराइजेशन जो देगा और पॉलिसी के कवरेज टर्म्स एंड कंडीशन के साथ देगा। जैसे दिख रहा है कि ट्रीटमेंट में 5 लाख खर्च होने हैं, जबकि उसकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड, या जो कह रहे ट्रीटमेंट में 6 लाख खर्च होने हैं, पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख ही है, तो ऑथराइजेशन 5 लाख का ही होगा। कार्ड होल्डर अवेज कैशलेस ट्रीटमेंट, साइंस द डॉक्यूमेंट्स, गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर पेइंग फॉर को पेमेंट, नॉन पेबल आइटम एक्सेट्रा। पर्सन जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, कैशलेस ट्रीटमेंट पे हो जाता है, उसमें को पे होता है, वो इंश्योर को बियर करना पड़ता है। जो आइटम्स क्लेम में से काट दिए गए हैं, जैसे टॉनिक है या कुछ अलग वो इक्विपमेंट्स हैं, उनका खर्चा भी उसको खुद को भुगतना पड़ता है। और अगर किसी कारण से कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिली है तो फिर उसके जैसे मान लिया हॉस्पिटल में ही 15 बेड नहीं थे, या हॉस्पिटल नेटवर्क की लिस्ट में ही नहीं था, आप किसी घर के आसपास के इमीडिएट हॉस्पिटल में भर्ती हो गए क्योंकि बीमारी का इमीडिएट अटैक था, तो ऐसे केस में रिएम्बर्समेंट एक्सपेंसेस भी लिया जा सकता है। उसका भी बिल टीपीए को सबमिट करके, बिल्स रसीद सब कुछ पेपर सबमिट करके क्लेम लिया जा सकता है। आफ्टर डिस्चार्ज सबमिट द पेपर्स विद इन 30 डेज। क्या पेपर होते हैं नॉर्मली? क्लेम फॉर्म, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द पेशेंट, एनईएफटी डिटेल, केवाईसी डिटेल, डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, ओरिजिनल फाइनल बिल्स, ओरिजिनल पेमेंट रिसीट्स और ओरिजिनल डिस्चार्ज। ये तो नॉर्मल पेपर से तो क्लेम के इंश्योरेंस कंपनी को देने ही होंगे। एंड देन रिम्बर्स का होगा तो उसी का चल रहा है। इसी में ये जो पेपर दिए जा रहे हैं, मेडिकल बिल्स, प्रेस्क्रिप्शन, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एमएलसी अगर है तो मेडिको लीगल रिपोर्ट, एक्सीडेंट की केस में नॉर्मली ये होती है, उनके बेसिस पर क्लेम सेटल होता है। अब पॉलिसी का प्रीमियम, लोडिंग, डिस्काउंट कैसे सेटल होती है देखिए। ये पॉलिसी का प्रीमियम चार्ट, इसमें एज व हेल्थ का प्रीमियम हमेशा एज के बेसिस पर लिया जाता है और कोई क्राइटेरिया लागू नहीं होता। लोअर इज द एज, लोअर इज द प्रीमियम, हायर इज द एज, हायर इज द प्रीमियम। यह इंश्योरेंस का बेसिक फंडा है। तो 18 साल तक के पर्सन के लिए भी पॉलिसी तो अवेलेबल है। 18 साल से कम का आदमी पॉलिसी ले नहीं सकता, लेकिन उसकी रिस्क तो कवर की जा सकती है ना। आपका बच्चा अगर 12 साल का है तो उसकी रिस्क तो कवर हो सकती है। तो प्रीमियम सम इंश्योर्ड वैल्यू 5 लाख, 7.5 लाख एंड 10 लाख। अब मान लिया कोई 20 साल का आदमी पॉलिसी ले रहा है 5 लाख की, तो प्रीमियम केवल 5616 प्लस जीएसटी। ये जो वर्ड यहाँ आ रहा है विदाउट वैल्यू पैक, इसको अभी कंफ्यूज मत होइए, मैं आगे बताऊंगा। आप तो सिर्फ ये देख लिए प्रीमियम विदाउट जीएसटी, इस पर जीएसटी लगी। आज की डेट में जीएसटी है। हालांकि कुछ स्कीम चल रही है, कुछ डिस्कशन चल रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी को वेट किया जाए या कम किया जाए, लेकिन अभी आज की डेट में नहीं हुआ। तो 20 साल का आदमी अगर 5 लाख की पॉलिसी ले रहा है, मीन्स 5616 प्लस जीएसटी। और यही अगर कोई 60 साल का आदमी ले रहा है तो 18,116 प्लस जीएसटी। और क्योंकि 65 के बाद में पॉलिसी तो कंटिन्यू की जा सकती है, दी नहीं की जाती। आप आज की डेट में 66 ईयर्स के पर्सन को पॉलिसी दे नहीं सकते, लेकिन अगर उसको 64 की या 65 की एज में ले लिया तो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल कंटिन्यू तो कर सकता है, लाइफ लॉन्ग कर सकता है।
तो अगर उसकी एज मान लिया 80 हो गई और प्रीमियम 5 लाख का ही, तो 46,927. So this is a proof in the health insurance policies कि lower is the age, lower is the premium, higher is the age, higher is the premium. Lower premium normally 45 तक चलता है. 45 के बाद बॉडी में कोई ना कोई सिकनेस एंटर हो जाती है. बीपी, शुगर, नी पेन, कार्डियक अरेस्ट, कुछ भी हो सकता है. So this is premium chart, simple. You don't need to do any calculation. 10 लाख की पॉलिसी आप दे रहे हैं किसी कस्टमर को, 50 साल की उसकी उम्र है, 13,723 प्लस जीएसटी चार्ज कर दीजिए, दैट्स ऑल. अब ये था विदाउट वैल्यू पैक. सेम चार्ट, विदाउट वैल्यू पैक, विदाउट वैल्यू पैक, यहां है विद वैल्यू पैक. विद वैल्यू पैक का मतलब क्या है? इसमें वैल्यू पैक में कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाएगी और उस एक्स्ट्रा फैसिलिटी का एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है. तो यहां प्रीमियम बढ़ जाता है. यहां 20 साल के आदमी का प्रीमियम 6458 प्लस जीएसटी और 60 साल के का 20,833 प्लस जीएसटी. तो प्रीमियम थोड़ा इंक्रीज हो गया और ये इंक्रीज विद वैल्यू पैक है इसलिए हुआ. ये इंडिविजुअल प्रीमियम दोनों कैटेगरी का होगा. अब यह वैल्यू पैक क्या है ये समझ लीजिए. लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज वैल्यू पैक. Value pack means if you are opting for value pack, this is something like add-on waiver. If you are selecting for value pack, you have to pay extra loading of 15%. लेकिन उस वैल्यू पैक में मिलेगा क्या? अब पॉलिसी में 2% की रूम रेंट की सीलिंग है, 5,000 रुपये पर डे तक मैक्सिमम मिल सकता है. लेकिन यहाँ वो रिवाइज होगा 10,000 रुपये पर डे तक हो सकता है. तो बढ़ गया. आईसीयू में भी ये सीलिंग थी कि 5% पर डे तक मिल सकता है, मैक्सिमम 10,000. अगर आप वैल्यू पैक ले रहे हैं तो ये 5% सम इंश्योर्ड सब्जेक्ट मैक्सिमम 20,000 पर डे हो सकता है. पॉलिसी में 5% को पेमेंट का प्रीमियम है, यानी 5% हर क्लेम पर आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा. अगर आपने वैल्यू पैक लिया तो ये 5% भी वेव हो गया, आपको कुछ नहीं देना, पूरा की पूरा कंपनी देगी. प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन लिमिट की लिमिट है. प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज. लेकिन अगर आप वैल्यू पैक ले रहे हैं तो ये लिमिट बढ़ गई. प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज हो गया और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज हो गया. तो चारों बेनिफिट्स की लिमिट बढ़ गई. या यूं कहें इनमें से एक तो खत्म ही हो गया, को पेमेंट. इसलिए इसका नाम है वैल्यू पैक. एक ऐसा पैकेज है जिसमें इंश्योर्ड को बहुत फायदा है और एक्सपेंस केवल 15% ज़्यादा है. तो इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर प्रीमियम का जो कंपैरिजन है उसको समझना पड़ेगा. क्योंकि एक ही फैमिली में अगर 4 मेंबर हैं, अगर चारों अपनी अलग अलग पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम कुछ और आएगा. चारों एक ही में सम इंश्योर्ड में लेते हैं तो प्रीमियम कुछ और आएगा. ये देखिए, समझिए. मैं पॉलिसी लेता हूं,
मेरी एज मान लिया 45 है, तो मेरा इंडिविजुअल प्रीमियम है 9676 प्लस GST। और अगर फैमिली फ्लोटर लेता हूँ तो भी मेरा प्रीमियम रहेगा 9676, क्योंकि मेरी एज के हिसाब से 45 के हिसाब से यही प्रीमियम होता है। अब मैं अपनी वाइफ को भी कवर कराना चाहता हूँ जिसकी उम्र 40 ईयर्स है मान लो, तो अगर मैं उसके लिए सेपरेट पॉलिसी लेता हूँ तो उसका प्रीमियम आता है 9224। लेकिन मैं अपनी पॉलिसी में फ्लोटर रिस्क कवर कराता हूँ तो उसको केवल 45% प्रीमियम देना पड़ेगा, तो ये होगा केवल 415। ऐसे ही मेरा सन है मान लो 24 ईयर्स का, अब उसको मेरी अलग से पॉलिसी लेता हूँ तो प्रीमियम बना उसका 7415 प्लस GST। लेकिन मैंने अपनी पॉलिसी में कवर करा लिया क्योंकि वो कुछ जॉब नहीं करता इंडिपेंडेंट, तो उसका प्रीमियम केवल 45% ही लगा 3337। और फोर्थ मंथ मान लिया डॉटर है 18 ईयर्स का, तो 18 ईयर्स के बाद सेपरेट पॉलिसी ले सकते हैं आप 6874। लेकिन यहाँ अपने फैमिली में ही कवर करा लिया फ्लोटर में, तो केवल 45% प्रीमियम दिए। तो इस एग्जाम्पल से समझ में आता है कि आपका टोटल सेपरेट प्रीमियम अगर आपने चारों के लिए इंडिविजुअल पॉलिसी ली होती तो आपको देना पड़ता 33189 प्लस GST, जो फैमिली फ्लोटर में केवल 20,257 प्लस GST होगी। अब आप इन पे दोनों तरीके से वैल्यू पैक भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल पर भी ले सकते हैं। 15% एक्स्ट्रा देना होगा, उसका 4978 हो गया। फैमिली फ्लोटर पर क्या आपका केवल 3039 लगा क्योंकि प्रीमियम का। ये आपको 10 लाख का एग्जाम्पल दिया गया है, सम इंश्योर्ड 10 लाख। लेकिन फैमिली फ्लोटर लेने पर प्रीमियम सेविंग होती है, एक ही सम इंश्योर्ड में कवर हो जाते हैं। फर्क यह पड़ता है कि जो जो क्लेम लेता गया उतने से सम इंश्योर्ड कम होता चला जाएगा। नॉर्मली कई बार कोई भी क्लेम नहीं लेता, कई बार ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स। अब यही 5 लाख का एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो जो प्रीमियम 49 ईयर्स के का 10,524 रखता है वो तो लगेगा पूरा की पूरा। प्रीमियम किसका कम होगा? वाइफ का 45% लगा, सन का, डॉटर का। तो 5 लाख का प्रीमियम अगर चारों अलग अलग लेते पॉलिसी तो 28,723 प्लस GST होता। लेकिन एक ही फ्लोटर ले लिया तो 10,000 रुपये का फर्क पड़ गया, 18,730। वैल्यू पैक में भी वो कितना फर्क पड़ गया देखिए, 4309 के अगेंस्ट में केवल 2807। वैल्यू पैक इज एडवाइजेबल। You are getting extra 15% premium, insured is getting extra facilities. Pre-post hospitalization days limit, no co-payment, room rent is expended. So value pack is good. Now there are certain other premium discounts. पॉलिसी में कुछ और भी प्रीमियम डिस्काउंट का प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है देखिए, डायरेक्ट डिस्काउंट दिया जा सकता है 20% अगर डायरेक्ट चैनल से खरीदेंगे। फैमिली डिस्काउंट 10% और 2 नंबर से ज़्यादा होगा। नॉट एप्लीकेबल ऑन फ्लोटर। फ्लोटर पे डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। इंडिविजुअल फैमिली में 2 फैमिली से ज़्यादा पॉलिसी ली गई। ऑनलाइन पॉलिसी खरीदी गई है 5% डिस्काउंट दे सकते हैं। श्रीराम ग्रुप के किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस नहीं, श्रीराम ग्रुप के, SGI तो शामिल है ही उसमें। पूरे ग्रुप को भी अगर आप दे रहे हो तो 5% डिस्काउंट दे सकते हैं, चाहे वो SGI का हो या HDFC का हो, किसी भी कंपनी का, श्याम ग्रुप की कंपनी में चाहिए। क्लेम फ्री रिन्यूअल डिस्काउंट 2% for first 5 claim free years.
मतलब क्यूमुलेटिव बोनस तो मिलेगा ही। इन एडिशन 2% डिस्काउंट फॉर फर्स्ट 5 ईयर मिलता जाएगा। द डिस्काउंट इज ऑफर्ड अगेंस्ट चॉइस ऑफ इंक्रीज इन सम इश्यू। या तो क्यूमुलेटिव बोनस ले लीजिए या ये ले लीजिए। और दूसरे 1% फॉर नेक्स्ट 5 क्लेम ईयर्स। तो ये आपको फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अब इसके अलावा देखिए कि कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए टीपीए चाहिए, जिसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। विदाउट थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए सेटलमेंट कैन नॉट बी देयर। ये टीपीए सेटलमेंट कैसे होगा? थर्ड पार्टी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एक हॉस्पिटल्स का नेटवर्क बनाएगा, हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट करेगा, उन नेटवर्क्स में हमारी कैशलेस फैसिलिटी अलाउ कर देगा। हर सिटी में जो बड़े हॉस्पिटल हैं, खासतौर से चेन हॉस्पिटल चेन जो होती है, चेन कैसे होती है? अपोलो है, नारायणा है, इनकी ऑल ओवर इंडिया चेन है। मैक्स है, इतने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इन सब की चेन है। हर बड़े शहर में एक हॉस्पिटल में होता है, तो ये नेटवर्क हॉस्पिटल में आ जाता है। या जो रिनाउंड उस सिटी के हॉस्पिटल्स हैं जिनमें कि 15 से बहुत ज़्यादा बेड्स होते हैं, लोग जिनमें जाना प्रेफर करते हैं, वो भी नेटवर्क हॉस्पिटल में ले लिए जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंश्योर तो उन्हीं हॉस्पिटल में जाएगा। तो टीपी ये कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल कराएगा। हमारा टाई अप है मेडी एसिस्ट टीपी से। ये ऑल इंडिया वाइज मेडी एसिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज के नाम से बहुत बड़ा सेटअप है। इस मेडी एसिस्ट इंश्योरेंस टीपी के 13,000 प्लस हॉस्पिटल से टाई अप ऐप से ही कार्ड प्रोवाइड कर देता है, ऐप से क्लेम इंटीमेशन प्रोवाइड कर देता है, ऐप से क्लेम ट्रैकिंग फैसिलिटी है, व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। M1 बॉर्डरलेस बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं ऐप से। ये इनके फुटप्रिंट्स हैं। 14,000 प्रोवाइडर पार्टनरशिप्स हैं, 6 मिलियन क्लेम्स रिसीव्ड एनुअली। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ये 6 मिलियन क्लेम्स एनुअली रिसीव करते हैं। 226 मिलियन टोटल लाइफ सर्विस्ड। अब तक इन्होंने 226 मिलियन सर्विसेज प्रोवाइड कर चुकी हैं टोटल लाइफ्स के लिए। 81 ऑफिसेज पैन इंडिया। इसके मेडी असिस्ट के 81 ऑफिसेज हैं पैन इंडिया में। हर बड़े शहर में इनका ऑफिस है। 32 इंश्योरेंस पार्टनर्स। इंश्योरेंस पार्टनर्स ये कैसे होते हैं? जिन जनरल इंश्योरेंस और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इनके काम कर रहे हैं, दे हैव टू टाई अप विद देम। अब श्रीराम का अगर मेडी असिस्ट से टाई अप है तो बाकी टीपीए हमारे लिए काम नहीं कर रहे। ओनली दिस टीपीए विल वर्क फॉर अस फॉर कैशलेस फैसिलिटीज। If you are admitted in any hospital and you are seeking the service of any other TPA, will not provide. Our MediAssist will provide the service. TPAs का एक एक बंदा नॉर्मली आपको हर बड़े हॉस्पिटल में बैठा मिलेगा, या उनके आवर्स फिक्स होते हैं, इतने आवर्स में आ जाते हैं, उस आवर्स में वो जब भी कैशलेस फैसिलिटी अप्रूवल या अलाउ करानी होती है वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं।
उनके लिए 1-2 घंटे की विजिट भी काफ़ी होती है। बट विदाउट टीपीए अप्रूवल कैशलेस फैसिलिटी कैन नॉट बी अवेलेबल, नॉट अलाउड। Even claim settlement is done by TPA. तो ये TPA हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी यूजफुल है और इंश्योर्ड के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि इनको इजीली एक्सेस किया जा सकता है, इजीली अवेलेबल होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी मिलते हैं। डॉक्यूमेंट चेक किया और तुरंत वो डॉक्टर्स को कंफर्मेशन देते हैं, यू गो फॉर कैशलेस, इंश्योरेंस कंपनी विल पे। ये इन्होंने QR कोड स्कैनिंग के लिए दे दिया, व्हाट्सएप से कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा ये ई कार्ड प्रोवाइड कराएंगे जिसको डाउनलोड किया जा सकता है, क्लेम इंटीमेशन फॉर्म, प्लान हॉस्पिटल्स, नियर बाई हॉस्पिटल चेक करने के लिए लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे, क्लेम फॉर्म, reimbursement claim. These all facilities they will provide. So this is the health insurance. Sorry. अब आपको ये समझना है, this is our first indemnity based insurance policy. First thing. 18 to 65 years is the age. Pre-hospitalization, post-hospitalization expenses are covered up to 30 days and 60 days. If value pack is taken, these facilities are increased. Ayush hospital facilities are covered. Some people do not prefer allopathic treatment. कोई होम्योपैथी लेता है, कोई नेचुरोपैथी लेता है, कोई आयुर्वेदिक लेता है, वो भी कवर्ड है, उनका भी क्लेम पेबल है। दोनों बेसिस पर पॉलिसी अवेलेबल है, इंडिविजुअल भी और फ्लोटर भी। हर साल क्लेम फ्री ईयर पर 5% बोनस मिलेगा या उसके बदले में 2% डिस्काउंट देगी। अब इसमें 3 तरीके के सम इंश्योर्ड अवेलेबल है, 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख। थर्टी डेज का ग्रेस पीरियड अवेलेबल है, 30 डेज का फ्री लुक पीरियड अवेलेबल है। इंश्योर्ड चाहे तो विद इन 30 डेज पॉलिसी को कैंसिल कर सकता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पे करके बाकी सारा प्रीमियम रिफंड। ग्रेस पीरियड में अगर पॉलिसी रिन्यू हो गई तो बेनिफिट विल कंटिन्यू एज इट इज। को पेमेंट 5% है, लेकिन अगर वैल्यू पैक लिया गया है तो ये भी इंश्योरेंस कंपनी विल बी एट द कॉस्ट। एंड दिस इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ऑफर द वैल्यू पैक, क्योंकि वैल्यू पैक का प्रीमियम केवल 15% है, लेकिन एक को पेमेंट अगर मान लिया 4 लाख का ट्रीटमेंट पे खर्चा हुआ है तो 5% कटेगा, 20,000 रुपये हो गया। प्रीमियम आपने दिया 1500-2000 रुपये का। दिस इज ऑलवेज एडवाइजेबल। कैशलेस फैसिलिटी है, रिएम्बर्समेंट फैसिलिटी है। (36 months का वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए है, 24 months का सर्टेन स्पेसिफाइड 20 बीमारियों के लिए, उनको 2 साल बाद ही कवर किया जाएगा। प्रीमियम कैलकुलेशन बहुत सिंपल ही है, कम एज होगी कम प्रीमियम लगेगा, ज़्यादा एज होगी ज़्यादा प्रीमियम लगेगा।
इंडिविजुअल प्रीमियम विदाउट जीएसटी, इंडिविजुअल प्रीमियम विद जीएसटी। इन दो चार्ट्स में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। दूसरे वाले चार्ट में जीएसटी को ऐड कर दिया गया है। विद वैल्यू पैक, विदाउट वैल्यू पैक है। वैल्यू पैक सहित आप लोगे तो 15% प्रीमियम और ऐड कर दिया गया। वैल्यू पैक में ये 4 फैसिलिटीज शामिल है। रूम लिमिट बढ़ जाएगी, आईसीयू लिमिट बढ़ जाएगी, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के डेज की लिमिट बढ़ जाएगी और 5% को पेमेंट वेव हो जाएगा। गुड। फैमिली फ्लोटर का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा उसका एग्जांपल से बड़ी क्लियरली समझा दिया गया। 10 लाख का क्या होगा, 5 लाख का क्या होगा। उस पर भी अगर आप वैल्यू पैक लेते हैं तो कितना जुड़ जाएगा, दोनों सिचुएशन में कितना बढ़ेगा, कब कब कैसे कैसे आप प्रीमियम डिस्काउंट दे सकते हैं। और टीपीए की डिटेल, तो ये सब चीजें आपको अवेलेबल है। यू कैन गो अहेड टू सेल दिस पॉलिसी, दिस इज गुड।